गुर इतिहास की कथा चल रही है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब विखे विराजमान खालसे ने उच्च कोटि दे विद्वान बंदगी वाले चढ़दियां कलां वाले वो भी उन्हां दे विच ही जिन्हां नूं सतगुरु जी ने काशी विद्या पढ़न वास्ते भेजिया सी, वो भी 5 वापस आके अमृत छा के सिंह सजे बड़े विद्वान प्रखंड विद्वान ते नाल बंदगी वाले वो भी बैठे हैं। सारियां वल्लों बेनती हुई 10वें पातशाह नूं, महाराज किरपा करो, कुछ साडे प्रश्न हैं, असी बहुत विद्या पढ़ी है पर फिर भी अजे कुछ भेद समझ विच नहीं आ रहे, खुल नहीं रहे। ते आप जी सारियां विद्यावां दे करते हो, सारी विद्या ही आप जी तो है, सारी रचना ही आप जी तो है, सारियां दे अंदर रूह आत्मा भी आप ही हो। रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, बुद्धियां नूं प्रकाशन वाले भी आप हो, नेत्रां विच भी आप जी दा ही प्रकाश है। सो नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, इस करके आप तो परे कुछ भी नहीं, सारा ज्ञान आप तो है। आप कृपा करके दसो कि वेदां दे विच की है इहदा भाव, गुरबाणी दे विच की है, सिद्धांत की है, ये आप मेहर करो। सतगुरु जी कहन लगे भी मेरे विच ते भाई दया सिंह विच कोई भेद नहीं, ये मेरा ही रूप हन, ते जो भी तुसी प्रश्न करोगे उहदा उत्तर ये तुहानूं देणगे। ये समझ लो भी वो उत्तर मैं ही दे रहा हाँ। कोई रंचक मात्र भी लेस मात्र भी तुसी फर्क नहीं समझना साडे विच। क्यों कह के सतगुरु जी तो महलों में चले गए। हुण खालसे ने जो सभा विच उच्च कोटि दे विद्वान बैठे हैं, भाई दया सिंह जी तो जिन्हां अमृत छकिया, सोढ़ी आनंदपुर साहिब वाले शोभा सिंह जी, इस तरह भाई धर्म सिंह जी तो अमृत छकिया। सो इन्हां मुख दोहां तो संप्रदावां चलियां। भाई दया सिंह जी तो निर्मल संप्रदाय होती मरदान, वो महापुरख जो काशी तो पढ़ के आए उन्होंने आके अमृत छक लिया, त्यार बत्यार सिंह सज गए। अगे फिर उन्होंने तो विद्या पढ़ने वाले कईयां ने फिर उही बाणा रखिया, अमृत तो छक लिया पर बाणा उही रखिया जेड़े बाणे विच उन्होंने काशी विद्या पढ़ी सी। सतगुरु जी ने उन्होंने भी प्रवान कर लिया, वो भी प्रवान हैं। सारियां विच विचर के एकमिक हो के बाणी का प्रचार करन, सेवा करन, इस वास्ते सतगुरु जी ने उन्होंने भी प्रवानगी दी। ते कुछ अमृत छक के त्यार बरत्यार भी रहिंदे हैं, विद्वान भी हैं, शस्त्रधारी हैं, जोधे भी, सूरबीर भी हैं,
ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟਕਾ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਠੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੋਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਸੋ ਦੋਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅੱਗੇ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਚੋ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੇਈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਪੂਰ ਥਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
गुरुद्वारा बड़ा सुंदर किले वांग, लागत का पता ही नहीं किन्नी को उत्थे लागत लग रही है, सेवा चल रही। होर भी बड़ियां सेवावां, फ्री दवाइयां दियां सेवावां, बड़ियां बड़ियां महंगियां दवाइयां, दासते भी बड़ी कृपा करते रहिंदे हन। विद्या का भी प्रवाह, बच्चे विद्या भी पढ़ते हैं, होर भी बड़ियां सेवावां चल रही हैं। सो महापुरखों के नाल जान का समा मिलिया तो महापुरखों ने इन्ना प्यार किया। बाबा बलवीर सिंह जी ने आप उस स्टीमर दे विच बिठा के ते चला के ते पूरी वेई दे विच उत्थे घुमाया। तो सारी ही वेई बड़ी सुंदर साफ, बड़े सोहने घाट बन गए, खुला पानी में छड़ा के। एडी वड्डी महान सेवा भी दुनिया दे विच इन्हां दा ऐसा नाम, ऐसा सन्मान है। हर बच्चा इन्हां नूं जानदा, पर्यावरण प्रेमी करके सारे बड़ा सन्मान देंदे हैं। बड़ियां होर भी सेवावां बहुत। ये दशमेश पिता की सारी कृपा है। सो इस तरह ही महापुरखों के नाल आए हुए संत बाबा अमरीक सिंह जी खुखरैन वाले, बाबा धर्म सिंह जी जो बड़ी प्यारी आत्मा, तखत साहिब यात्रा ते आउंदे रहे, दास नूं भी मिलते रहे। उदों नहीं सी इन्ना पता, स्थान ते नहीं सी गए, पर प्यार बड़ा सी उन्हां अंदर। बहुत ही बंदगी वाली आत्मा सी। भावें मुढ़ उदासी संप्रदा, पर उन्होंने अमृत छकिया सी वड्डे महापुरखों के हुक्म नूं मन के। तो उन्हां दी थां ते उही रूप लगता है। बाबा अमरीक सिंह जी खुखरैन वाले वो भी आए हैं, तिन्ने महापुरख नाल बहुत सारियां संगतां। सो कहण तो भाव ये है भी दशमेश पिता की किड्डी वड्डी रहमत है। निर्मल भेख दे विच भी ते खालसे दे रूप दे विच भी सारियां निभावां सेवावां निभा रहे हैं। उदासी भेख दे विच भी सेवावां चल रही हैं। बहुते उदासी महापुरखों ने अमृत भी छक लिया ते कई उसे भेख विच रह के सेवा कर रहे हैं। ये दशमेश पिता की बहुत वड्डी रहमत है। सो रोह विचार भाई दया सिंह जी तो गल चली सी, विचार चली सी। भाई दया सिंह जी बैठे हुए हैं, सतगुरु जी तो चले गए महलों विच। हुण खालसे ने बेनती की, महाराज पहला कर्मां दे बारे दसो। कथा पहला आ चुकी, करीबन ये 2 तिहार 20 दिन हो गए करीबन यदि विचार करदियां। मलो मली विस्तार हो जाता, बड़ी कोशिश करी दी है बहुता विस्तार ना होवे, पर दशमेश पिता की रहमत हो जाती है। सारी सोझी तो बख्शण वाले वो आप ही हैं। रोह विचार ते उहदा अखीर यही दसिया भाई दया सिंह जी ने। विचार तो बड़ी लंबी है भी जदों गुरु की शरण विच असीं आ जाते हाँ, बंदगी करते हाँ, नाम जपते हाँ, शब्द वाहिगुरु की कमाई करते हाँ। गुर का शब्द काटे कोट करम, करोड़ों ही कर्म साढ़े कटे जाते हैं। जिन्ना करोड़ां कर्मां करके अगे करोड़ां जन्मां की लिस्ट बनी, वो भी खत्म हो जाती है। जो मुढ़ ही नहीं रहा तो दरखत ही नहीं रहा तो उन्होंने फिर फल फुल पत्ते कितों लगने हैं, ताने कितों होणगियां। ये एक सिद्धांत है कि बंदगी दे नाल, कमाई दे नाल, समर्थ गुरु की शरण विच आउण दे नाल ये बख्शिश हो जाती है। ते पापियां पुनियां वास्ते है भी उन्हां दे कर्म नहीं मिटते। जो बंदगी नहीं करते खाली वो पाप उनदे विच ही हन, उन्हां दे कर्म नहीं मिटते हैं। लेख ना मिटी है सखी जो लिखिया करता, उन्हां दे लेख नहीं मिटते। पर सतगुरु समर्थ हैं,
जे भागां विच पुत्तर नहीं तो 6वें पातशाह 7 पुत्तर दे देंदे हन। जे शहबाज सिंह दे मत्थे ते लिखे एक बार मुसलमान बनेगा तो पिता सवेग सिंह अपने पैरों की धूड़ उहदे मत्थे ते ला के लेख ही मिटा देंदे हन। गुरु विच भी समर्था है, गुरु के सिखां दे विच भी समर्था है। वो तो कर्मां नूं मिटा देंदे हन, लेख ही मिटा देंदे, जिहड़ा नहीं मिट सकदा, आम लोकां वास्ते नहीं मिट सकदा। ये उहदा सिद्धांत हो गया। अगे फिर बड़े औखे प्रश्न किए 15 भी अज्ञान की है, माया की है, अविद्या की है, फिर जागृत की है, सुपन की है, सुखोप्ति की है, बेहोशी मूर्छा की है, समाधि की है, जीव की है, ब्रह्म की है, आत्मा किनू कहते हैं, 5 कोश की हैं। ये 15 प्रश्न किए, उन्हों का उत्तर भी विस्तार दे नाल आपां सुन चुके हाँ। इसी तरह फिर चलिया सी त्रिपटी, करता, क्रिया ते कर्म। सो पहला करता है, फिर वो क्रिया जो करता है, फिर वह जदों क्रिया पूरी हो जाती वो कर्म बन जाता है। इसका विस्तार आप 3 दिनों में किया सी, हुण आप उस पासे नहीं जाना। इस तरह फिर 3 त्रिपटियां होर हैं, ज्ञाता ज्ञान, गे प्रमाता प्रमाण, प्रमेय ध्याता ध्यान ते, ये 3 हैं। तो तिना का मतलब एक ही बन जाता है। हुण ज्ञाता हो गया जानन वाला, ज्ञान हो गया जिहदे द्वारा जानना है, तो गे हो गया जिन्हों जानना है। इस तरह ही ध्याता ध्यान ते, ध्याता ध्यान वाला, ध्यान उहदे नाल जुड़ना गुरु मंत्र द्वारा, जां जिस तरह भी ध्यान जोड़ना, ते जिहदा ध्यान कर रहे हैं। इस तरह परमाता प्रमाण प्रमेय। सो परमाता जिहड़ा प्रमाण चाहुंदा है भी आपां किते दे बारे कोई प्रमाण दिओ, गल समझ स्पष्ट हो जाए, ते प्रमेय जिहदा प्रमाण देना है। ये 9 हैं, ते 9 दियां फिर 3 ही एकमिक ही हो जांदियां हैं सारियां। ਇਹਦੀ विचार भी आप बड़े विस्तार दे नाल सुनी सी, पर ये तां ही ਹਨ ਜਦੋਂ ब्रह्म दी विच जोत जिहदा आभास ਉਹਦਾ आभास विच होएगा, तां ही इन्हां 'च हरकत आएगी। ਉਹਦੇ आभास तो बिना कुछ भी नहीं है। जो मन दीयां बिरतियां ਹਨ 5 मनियां ਹਨ, प्रमाण विपर्जय, निंद्रा विकल्प स्मृति, ये ताही हैं उहदी सत्ता करके। नहीं तो मान बुद्ध चित्त हंकार ये तो जड़ हैं, इन्हां विच कोई ताकत नहीं है। पर जदों चिदाभास उहदा विच आभास पैंदा है, उहदी विच सत्ता आभास नाल ही सत्ता हो जाती है। पर जिहदा आभास पैंदा वो निर्लेप है, उन्होंने कोई लेप नहीं लगता। ये विचार आप कल करीबन 1 घंटे दे विच विचार की। सो दा संखेप ये है भी जिस तरह सब तो वधिया एक प्रमाण है समझण वास्ते भी सूरज रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, गरमैश दे रहा है। वो सी एक शीशा, आतशी शीशा ਜਾਂ मोटा शीशा जिहदे ਆਪਰੇਸ਼ਨ वाली ਅੱਖਾਂ तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉਹ मोटा शीशा देंदे लाउण वास्ते, वो शीशा एक माध्यम है। वो शीशे नूं असीं सूरज दीयां किरणां वल करी, जिथे साफ उहदियां किरणां पैंदियां होण, उहदियां किरणां दा एक बिंदु बन जाएगा हेठां। वो बिंदु असीं जे
कपड़े ते लाइए कपड़े नूं अग लग जाएगी, रूह ते लाइए रूह नूं लग जाएगी, सुक्की लक्कड़ ते बिंदु नूं थोड़ी देर टकाई उत्थे अग लग जाएगी। हुण सूरज तां लेप है, पर उहदा माध्यम जिहड़ा है उहदे नाल अग पैदा होगी। अग नूं जिवें मर्जी कोई वरत लवे, भावें प्रसादा बनाउण वास्ते वरत लवे, भावें अग लाउण वास्ते वरत लवे, वो तो उहदी मर्जी है। जिस तरह कोई वरतेगा उन्होंने उहो जिहा फल मिलेगा। पर सूरज जां उहदियां किरनां नूं कोई दोष नहीं, वो निर्लेप हैं। ये तो एक मोटा प्रमाण है, ये बरीक प्रमाण होर भी बड़े हैं। सो इस तरह ही उहदा परछावां जिहड़ा है अंतःकरण विच साडे पैंदा है। मन बुद्ध चित हंकार इन्हां विचों जो बुद्धि है वो नेड़े है आत्मा दे, उस तो बाद चित है, फिर मन है, फिर मैं पुनः अपनत है। इन्हां विच उहदा जदों परछावां पैंदा है फिर सारी हरकत शुरू हो जाती है। पर वो निर्लेप है, उन्होंने कोई लेप नहीं, वो शक्ति दे रहा है, प्रतिबिंब उसे दा जिहदे करके हरकत हो रही है। इसनों विद्वान कल्पत तदात्म संबंध कहते हैं। पहला अज्ञान होया, उस तो जो दा फुरना होया, वो फुरना ही उतों ही अज्ञान मन्निया जाता है। जो फुरना होया, एक हम बहुत श्यामा प्रजायते, एक तो अनेक हो जावा, तीर्थम ओंकार तिन कहा सो तुन पूर जगत मो रहा ताते पई श्रेष्ठ है सारी। वो जो संकल्प, वो जो फुरना है, ओदा हुक्म है। तो सतगुरु जी कहते ओदे बारे असी कुछ नहीं कह सकते, हुक्म ना कहा जाए। हुक्म ही होवन आकार है, तो सारा कुछ उहदे हुक्म विच, पर वो हुक्म नूं कोई कह नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। वो कहन तो परे है, उहदे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। सो उस तो फिर तीन गुण पैदा हो गए कि सतो रजो ते तमो, तो फिर तिना गुणों का इकट्ठ जो सतो वंश है उस तो माया बन गई, तो जो तिने गुण मलीन अंश है उस तो अविद्या बन गई। सो माया जो है वो ईश्वर नूं बनाउण वाली है, ते अविद्या जिहड़ी है इहदे नाल जीव बन गया। जीव ते ईश्वर दो हो गए, वो परम ईश्वर है, वो ब्रह्म है। इस तरह फिर सारी अगे रचना चल पई। अगे तिना गुणा तो अगे फिर पंज तत्त बन गए, पंज तत्त कर तो श्रेष्ठ सब साजी। अगे फिर सारा सिस्टम चल पिया। पता ही नहीं किन्नी को रचना है, कोई अंत ही नहीं। किन्ने को ब्रह्मांड हैं, किन्नी को रचना है, इसका कोई अंत नहीं। ये भी नहीं है भी वो फुरना कदों होया, किवें होया, ये भी नहीं कोई जान सकता। कोई ये भी नहीं कह सकता भी वो कदों तो है, क्योंकि उदों काल है ही नहीं सी। काल की रचना करने वाला भी अकाल है, उदों काल ही नहीं सी। वो काल भी नहीं कहा जाए, वो केड़ा काल सी कि जो काल है ही नहीं सी, उदों की कहोगे। काल कल्पना कदे ना खाए, काल रहत अनकाल स्वरूपा दसम पातशाह का प्रमाण है। उहदे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही है भी उहदी वडियाई नूं कहो, उहदे जस नूं कहो, ताकि तुहानूं उहदी प्राप्ति हो जाए। उन्होंने कोई फर्क नहीं, तुसी कहो ना कहो, उन्होंने की फर्क है। जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जे सारी दुनिया उहदा नाम जपन लग जाए तो वड्डा नहीं हो जाएगा, जे कोई भी ना जपे तो घट नहीं जाएगा। उन्होंने कोई फर्क नहीं है। असी जो कुछ करना है आपदे वास्ते करना, आपदे भले दे वास्ते करना है। ये सी संखेप पिछली सारी कथा का सारांश। अगे हुण भाई दया सिंह जी नूं खालसे ने पूछया भी वेदां दे महावाक हैं 4, इन्हां बारे दसो। तो भाई दया सिंह जी कहते भी वेदांत विच जिहड़ी विचार है, जिहड़ा 4 साधन कर लवे, उस निपुण हो जावे,
ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਨੁਬੰਧ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੋਧ ਬੋਧਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤ ਬੋਧਕ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ 4 ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹੁਣ 4 ਸਾਧਨ ਇਹ ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜ ਸੰਮਤੀ, ਮੋਕਸ਼, ਇੱਛਾ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਟ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਸਮਦਮ ਸਰਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਰਾਮ, ਛਠੀ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਹ ਨਾਮ। ਇਹ 6 ਦਾ ਨਾਮ ਖਟ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੀਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ 4 ਅਨਬੰਧ ਕੋ ਗਿਆਨ ਰਿਦੇ ਜਪ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰ ਕਰਨ ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਮਤ ਜੋਏ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਕੋ ਗਿਆਨ ਯਥਾਰਥ ਜਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਵਾਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਯਥਾਰਥ ਸਹੀ ਗਿਆਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋ ਭੂਤ ਹੈ ਮਹਾਵਾਕ ਸੋ ਮਾਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਵੇਦ ਹਨ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਹੀ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਤੇ 4 ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਾਵਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ, ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮੂਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ 5, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਅੰਤःਕਰਨ ਆਦਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਵਾਚਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੀਵਵਾਚਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਈਸ਼ਵਾਚਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਜੀਵਵਾਚਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਾਚਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਈ ਹਨ। 4 ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਈ ਹਨ। 4 ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ 3 ਬਣ ਲਓ ਫਿਰ 12 ਮਹਾਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 12 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਨ। ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੋਧ,
सो इस तरह प्रज्ञानंदम ब्रह्म, ये जो महावाक है, महावाक्य ऋग्वेद विकेत, ये महावाक ऋग्वेद दा है। सो ऋग्वेद कह लो सारी महावाक दी व्याख्या मान लो भी प्रज्ञानंदम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक है जिहदे अर्थ आपां सरवण कीते हैं। प्रज्ञान, आनंद ते ब्रह्म, ये इहदा अर्थ है। क्यों समझ ना करो। और युजुर्वेद का महावाक अहम ब्रह्म अस्मि, ये भी 3 बन गए ता ही अर्थ होएगा अहम ब्रह्म अस्मि। सो अहम नाम है, जिवें इहदा सिद्धा अर्थ जे आपां करना होवे तां ये होएगा भी मैं ब्रह्म हाँ। सीधा अर्थ इहदा ये है। अहम जिहड़ी अंदर बिरती है जानने वाली, जिहदे विच चेतन दा आभास पै रहा है, ते ब्रह्म अहम हो गया जीव, ब्रह्म हो गया ब्रह्म, असमी हो गया उन्हां दे बोध कराउण वाला। इहदा अर्थ बन गया जीव ब्रह्म दी एकता दा बोध, मैं ब्रह्म हाँ। ये बोध जिस प्राप्त होवे, ज्ञान प्राप्त होवे कि मैं ब्रह्म हाँ, ये अर्थ हो गया, अखरी अर्थ हो गया। हुण व्याख्या तो बड़ी वड्डी है। अखरी अर्थ हो गया अहम ब्रह्म अस्मि, भी मैं ब्रह्म हाँ। क्यों ये जिहड़ा महावाक है, इसे तरह ही शाम वेद दे विच तत् त्वम असी, 3 वखरे तत् त्वम असी। हुण तत् दा अर्थ की है? जो सृष्टि की रचना तो पहला भी नाम रूप तो रहत सी, तत् दा अर्थ है जो सृष्टि की रचना तो पहला भी नाम रूप रहत सी, ना उहदा कोई ना सी ना उहदा कोई रूप सी, कुछ भी नहीं सी, पर वो सत्ता है, वो ब्रह्म है तो सही, लखे जो कोई, वो है तो सही, जे कोई उन्होंने लख सके जान सके, पर जस ओह है तस लखे ना कोई, जेहो जा ओ है ओहो जा उन्होंने कोई जान नहीं सकता। कुछ अभेदता हो सकता है, एकमिकता हो सकता है। पिता का जन्म के जाने पूत, भी कोई भी पुत्र आपके प्यो का जन्म नहीं जानता भी उसका जन्म किवें होया, नहीं जानता। वेख्या ही नहीं आपके प्यो के जन्म को, किसी पुत्र ने नहीं वेख्या, वेख ही नहीं सकता। सो इसका भाव यह है। तो फिर सृष्टि की रचना समय भी जदों ने संसार की रचना रची, साजे ते पवना भया पवने ते जल होए, जल ते तिरपण साजिया घटघट जोत समोए, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। जदों उन्होंने रचना रची उदों भी वो नाम रूप तो रहत है, उदों भी रचना रच के भी, रचना रतन समय भी, जिन्हों सतगुरु जी ने कहा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद विच भी सच, जदों कुछ भी नहीं सी उदों भी वो सच्चा सी। जुग आद, जदों जुगां की आरंभता हुई, जुगां की रचना हो गई, वो मर्यादा बनेगी, जुगां की आरंभता दे विच भी वो सच्चा सी। है भी सच, हुण भी सच्चा है, नानक होसी भी सच, अगे भी वो सच्चा होएगा। ये व्याख्या समझ लो, ये है तत्त्वम असी। तो तत् दा अर्थ जिहड़ा है वो आपां ये कीता है। तो इसे तरह ही त्वंग पद का जिहड़ा अर्थ है, त्वंग है तो जीववाचक, तत् है ब्रह्मवाचक।
ਤਵੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਖਸ਼ੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਸ। ਅਗਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਪਰਦਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼, ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਾਲੀ ਚਿਮਨੀ ਚੜ੍ਹਾਤੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੋਪਤੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ, ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਖਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 17 ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। 17 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 5, ਤੇ 5 ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹ 15 ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ 17 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 17 ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ 3 ਕੋਸ਼ ਹਨ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਤ ਤਵੰਗ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਤਵੰਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਤ ਤਵੰਗ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਉਂ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਯੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖਰ ਬਣ
अथर्वण वेद का जिहड़ा महावाक है वो है अयं आत्मा ब्रह्म। हुण अयम का अर्थ जिहड़ा है वो हुंदा है भी अपने आप तो प्रकाशमान है, जिन्हों आप सतगुरु जी ने साहेबंग कहा है, अपने आप तो जो प्रकाशमान, ये अयम का अर्थ सुते प्रकाशमान जिहड़ा है। तो आत्मा नाम साक्षी का है, जो जागृत सुपन सुखोपत इन्हां दा भी साक्षी है। तुरिया रूप में साक्षी तिना अवस्था का है, पर तुरिया का भी साक्षी है वो परारूप ब्रह्म है, जो तुरिया नूं भी प्रकाशन वाला है। ये अगे तो अगे फिर विचार चलती। स्वेद अर्थ हो गया, अयम का अर्थ हो गया सुते प्रकाशमान, आत्मा का अर्थ हो गया जो साक्षी है। तिना अवस्था का जागृत सुपन का भी सुखोपती रूप हो करके तिना अवस्था का साखी है। तुरिया अवस्था, तुरिया साखी, इस तो अगे फिर तुरिया नूं भी प्रकाशन वाला। सुरो विचार इत्थे पर तिना तक ही विचार, इत्थे तुरिया तक ही विचार है, अगली नहीं है। इत्थे साक्षी कहते हैं जो तुरिया अवस्था है वो साक्षी की अवस्था है, जो जागदिया भी विश्व रूप उन्होंने विश्वमानी कहते जागृत अवस्था का जिहड़ा है, अखां विच विश्व बैठ के वो विश्व संसार नूं वेख रहा है। जागृत अवस्था का मानी विश्व नामे जीवात्मा है। सुपन अवस्था का मानी तेजस नामे जीवात्मा, सुपने विच जो सारा कुछ जानता है उन्होंने तेजस कहते हैं। विश्व तेजस ते प्राग्ञ, प्राग्ञ नाम बुद्धि का है। प्राग्ञ जिहड़ा सुखोपती अवस्था का मानी है, जो सुखोपती अवस्था के बारे उसका संकेत देता है, पूरा नहीं दस सकता पर संकेत उसका देता है। इन्हां तिन्नां नूं जो प्रकाशन वाला है वो साखी है। इत्थे आत्मा का अर्थ जो है, जो अथर्वण वेद का महावाक है, इसका अर्थ है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम जो सुते सिद्ध अपने आप तो प्रकाशमान, आत्मा जो साखी है, तो ब्रह्म ब्रह्म है ही। सो इस तरह ये चार महावाक जिहड़े हैं इन्हां दा आखिरी अर्थ है। इयों अगे ये हुण आपां पौड़ी पूरी करिए। सो भाई दया सिंह जी कहते खालसा जी ये चार महावाक हैं, इन्हां नूं ध्यान दे नाल सुनो ते विचारना करो। फिर खालसे ने प्रश्न किया महाराज ये ठीक है भी गुरबाणी विच भी इन्हां दा जिक्र आया है। भाई दया सिंह जी कहते जपजी साहिब दे विच ये चारे महावाक हैं। जपजी साहिब अंदर ये चारे महावाक हैं। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब अंदर ये चारे महावाक लिखे हैं। वो साख्यातकार ऊपर होंदे हैं। जो साख्यातकार हो, पहले सरवण है, फिर मनन है, फिर निध्यासन है, फिर अगे साख्यातकार ते चार वारी गुरु जी ने कहा है। पहला सदोगुणी सृष्टि का जिक्र है, असंख जप असंख भाओ। पहला निध्यासन वाला आ गया, तो निध्यासन तो बाद फिर साख्यातकार है। जो सुनेगा मनेगा कमाई करेगा उन्होंने साख्यातकार होएगा, ब्रह्म प्रगट होएगा उसके अंदर। साख्यातकार ऊपर है तू सदा सलामत निरंकार। सलामत का अर्थ होता तू सदा सलामत, जो सदा है एक रस, ये ब्रह्म हो गया। ते तू जीव का वाचक हो गया, ते निरंकार अभेता का वाचक है। इस तरह ये चारे महावाक गुरु नानक देव जी ने कहे हम साख्यातकार के ऊपर। पहले पंज प्रवाण वाली पौड़ी ते,
फिर अगे असंख जप असंख पाओ, जिहदे विच सतोगुणी सृष्टि का वर्णन किया है। अगे फिर तमोगुणी सृष्टि का वर्णन असंख मूर्ख अंधकोर, अगे फिर असंख नाव असंख थाव। इस तरह चारां दे अखीर विच जो सतगुरु जी ने वर्णन किया, तू सदा सलामत निरंकार। ते सलामत जो तत्पद का अर्थ है, तो तू जीववाचक है कि निरंकार वो परम पिता परमात्मा जिहदा आकार नहीं है, वही अभेता का वाचक है। इसकी व्याख्या आप कल नूं करांगे। अखरी अर्थ ये सन। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ भी कई बार संगतां ने हुण कल नूं जाना विचों पर करना रह जाए, फिर कईयां दे ध्यान च आउंदा भी वो महावाक जिहड़े गुरु नानक देव जी ने कहे वो किहड़े सन। हुण कईयां ने जे कल नूं जाना होवे तो फिर उन्हां दे अंदर विचार रहेगी भी हुण कित्थों पता लगे। इस करके वो पहला थोड़ा दस्सण दा यतन हुंदा है। ये तो हन ही, इस तो अगे होर भी बाणी अंदर हन। सरगुण निर्गुण थापै नाओ, दो मिल एको कीनो ठाओ, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। अगे सारे हम, ये गए निर्गुण वो गए सरगुण, केल करते विच स्वामी मेरा। ये सारे महावाकां दे भाव ही हैं, इन्हां दे विच सारा कुछ है। तैसे गुरबाणी विख सगल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई निपजावई। क्यों गुरबाणी तो आम निरंकार, इत्थे तो सारा कुछ ही है। इसे करके जेड़े तो परे तो परे विद्वान हैं, बहुत परे तो परे, वो भी गुरबाणी नूं नमस्कार करते हैं भी गुरबाणी के ज्ञान तो परे कोई ज्ञान नहीं। तो जेड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो ब्रह्म ज्ञान नूं भी प्रकाशन वाली गुरबाणी है, गुरबाणी का ज्ञान है, वो भी नतमस्तक होंदे गुरु ग्रंथ साहिब अगे भी इस तो परे कोई गल नहीं। इस करके गुरबाणी का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का उपदेश परे तो परे है। विद्वानां वास्ते डूंघे तो डूंघा, परे तो परे है। तो आम साड़ी बोली में भी सौखा ही समझ में आ जाता है, आम समझण वास्ते भी बड़ा सौखा है। तो विद्वान जदों उहदी विचार करते कहते भी ये तो हो, इस तो परे तो कोई गल ही नहीं। जिन्ना डूंघा विद्वान होएगा, जिन्नी उहदी आत्म विषैणी बुद्धि होएगी तेज, आत्म विषैणी बुद्धि आत्मा नूं जानन वाली, उन्ना ही वो हैरान होंदा जाएगा, विस्माद होंदा जाएगा भी गुरबाणी का ऐसा ज्ञान। रोह विचार समा इजाजत नहीं देता। इत्थे ही आपां अगली विचार जो है वो कल दे प्रकार अगे होर भी आउणगे महावाक, प्रकृतिक वाक भी होंदे हैं। फिर साविकल्प निर्विकल्प वाक भी हैं, अवांतर वाक भी हैं, इन्हां दा भी जिक्र आएगा। पर ये महावाक ही सारियां तो ये ऊपर हैं, अगे फिर इन्हां दे थल्ले ये बाकी महावाक आ जाते हैं। प्रकृतिक वाक, साविकल्प, निर्विकल्प, अवांतर वाक, इन्हां दा जिक्र सतगुरु जी रहमत करनगे। कल दी विचार अंदर आप यतन करांगे भी ये विचार हो सके।